ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جاؤ اچھا سا تیار ہو کر آؤ، آج اپنی نئی نویلی دلہن کو بہت محبت دینے کا ارادہ ہے، جما دینے والا برفیلے لہجے میں کہتے شمروز نے اسے بازو سے پکڑتے ڈریسنگ روم میں دھکا دیا۔ وہ جو ابھی اپنے باپ کی موت کا غم بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکی تھی، جی جان سے کانپ اٹھی۔ شمروز کا دیا ہوا سلیو لیس ڈریس دیکھتے اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ جس کو ساری زندگی لالا کہتی آئی تھی، اس کے سامنے یہ لباس پہنتے ہی اس کی جان نکل رہی تھی۔ جب شمروز اندر آیا، تمہیں نرمی سے کہیں بات سمجھ نہیں آتی نا؟ وہ لرز اٹھی جب غصے سے کہتے شمروز نے اسے دیوار سے لگاتے اس کی قمیض۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا ان خرگوشوں کا پیچھا چھوڑ کر تیار ہو جاؤ۔ مہر نے اپنی ماں کی بات سنی اور مسکراتے ہوئے بولی، اماں جان میں اور کہاں جاؤں گی، ویسے بھی ابھی بہت وقت ہے تقریب میں، سوچا کچھ وقت ان خرگوشوں کے ساتھ گزار لوں۔ مہر کی والدہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو کہ خوبصورتی میں اپنے خاندان پر گئی تھی، لیکن اس کی عقل پر انہیں حیرت ہوتی تھی کہ 20 سال کی یہ لڑکی کا ذہن بالکل بچوں والا تھا۔ مٹی سے کھیلنا، یہاں سے وہاں ایسے اڑتی پھرتی جیسے کوئی تتلی ہو، جبکہ ان لوگوں کے خاندان میں 20 سے اوپر لڑکیوں کو کسی نہ کسی رشتے کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے۔ مہر کی بھی کہیں بات چل رہی تھی۔ رشتے کی یہ بات مہر اور اس کی والدہ کے علم میں نہیں تھی، کیونکہ اس کے بابا چاہتے تھے وہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ انہیں ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی جو کہ اندر ہی اندر انہیں کھوکھلا کر کے موت کی طرف دھکیل رہی تھی۔ یہ بات بھی مہر کے والد نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ اتنی بڑی جائیداد کی مہر اکلوتی وارث تھی، جبکہ مہر کے والد کے بہن بھائی بھی تھے، لیکن وہ ان سے حسد ضرور کر سکتے تھے، لیکن ان کا احساس نہیں۔ ایک بڑا بھائی اور بہن مہر کی پھپھو کو جب اس بات کا علم ہوا کہ مہر کے لیے رشتے تلاش کیے جا رہے ہیں، تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ مہر کے رشتے کا پیغام لے کر بھائی کی چوکھٹ پر آ گئی۔ مہر تو اپنی پھپھو کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، وہ ان سے محبت کرتی تھی، لیکن وہ ان لوگوں سے بغض پالے بیٹھی تھی۔ وہ میٹھی چھری بن کر صرف جائیداد کے لیے مہر کو اپنی بہو بنانے پر تلی ہوئی تھی، اور ان کا وہ خوبرو اور بد اخلاق، بد زبان اور بد کردار بیٹا دن رات کسی نہ کسی طوائف کے کوٹھے کی زینت بنا ہوتا۔ اس بات کا علم مہر کے والد کو تھا، لیکن مہر کو نہیں تھا۔ وہ تو سب لوگوں کو یہی سمجھتی تھی کہ وہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کی سوچ اس وقت غلط ثابت ہوئی جب ایک دن مہر کے والد نے اپنی بہن سے دو ٹوک بات کرتے کہا کہ وہ مہر کا رشتہ خاندان میں نہیں کریں گے۔ یہ بات سن کر مہر کی پھپھو حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی اور بولی، لالا ہم نے سنا تھا خون سفید ہو جاتے ہیں، لیکن آج آپ کی یہ بات سن کر اس پر یقین بھی ہو گیا کہ واقعی خون سفید ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بہن کو دیکھا اور بولے، نیک بخت، اگر میں خاموش ہوں تو مجھے خاموش رہنے دو۔ تمہیں اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، بیٹی نہیں دی، تو کیا ہوا؟ تم خود ایک عورت ہو، تم چاہو گی کہ کسی بھی لڑکی کے نصیب میں تمہارا بیٹا لکھ دیا جائے؟ جبکہ اپنے بھائی کی بات سن کر ایک دم ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، تبھی مہر کی کھنکھناتی آواز پورے ہال میں گونجی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی پھپھو سے ملی۔ اس کی پھپھو نے بھی اپنے حواس قابو میں کرتے ہوئے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگایا تھا، مانو اپنے بھائی کی بات کا کوئی مطلب ہی نہ سمجھ آیا ہو۔ تبھی تایا جان اور تائی جان کو شمروز لالا کے ساتھ آتے دیکھ کر مہر کے دل کی کلی کھلی تھی۔ وہ تو یہاں سے وہاں اڑتی پھر رہی تھی۔ اس کی ماں جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کو لوگوں سے کتنی محبت ہے، اور اس کے خاندان میں یہ چند لوگ ہی تو تھے، بڑے تایا کا ایک بیٹا شمروز لالا، جبکہ پھپھو کے 2 بیٹے اور مہر پورے خاندان کی اکلوتی لڑکی تھی۔ تائی جان مہر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، جبکہ شمروز لالا سے وہ خود بہت ڈرتی تھی، جو کہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ شمروز کو یہ بچپنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ مہر سیریس ہو جائے اور زندگی کی اونچ نیچ کو سمجھ لے، لیکن وہ مہر کیا جو کسی کی بات مان لے۔ یہ تو اس کی والدہ صبح و شام اسے سمجھاتی، لیکن مہر کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی بھی انسان جب تک خوبصورت ہوتا ہے، جب تک اس کا کوئی مطلب نہ پورا ہو جائے،
ورنہ لوگ اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنے کے بعد اس حد تک بدصورت بنا دیتے ہیں کہ کسی کا بھی دل نہیں کرتا اس خوبصورت انسان کی طرف دیکھنے کو۔ یہ بات مہر کو بہت دیر میں سمجھ آئی تھی۔ ایک اچھے سے ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ تبھی تائی جان نے لال جوڑے میں ملبوس مہر کے کھلتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور بولی، بھائی صاحب، ہم نے سنا ہے آپ ہماری بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ جبکہ مہر کے والد نے اپنی بھابھی کی جانب دیکھا اور بولا، جی بھابھی، آپ نے صحیح سنا ہے، میں جلد از جلد مہر کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ تائی جان نے کہا، بھائی، اللہ ہمارے بچوں کے نصیب اچھے کرے، آپ نے بہت اچھا سوچا اس بارے میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ جبکہ مہر کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا، جی بھابھی، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ آپ نے اپنی نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو مجھ سے ضرور پوچھیے گا، ہو سکتا ہے میری بیٹی کا نصیب آپ ہی کی وجہ سے سنور جائے۔ انہوں نے اپنے دیور کی جانب دیکھا اور کہا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ مہر خاموشی سے اس منظر کو دیکھ چکی تھی۔ اوپر اپنے کمرے میں جا کر مہر نے اپنے دھڑکتے دل کو تھاما اور جلدی سے دروازہ بند کرنے کے بعد اپنے فون کو تلاش کرنا چاہا جو اسی ڈریسنگ پر نظر آیا۔ مہر نے جلدی سے فون اٹھایا اور مطلوبہ شخص کا نمبر ملا کر کان سے لگا لیا، جبکہ دوسری طرف کافی دیر تک بیل جاتی رہی لیکن کسی نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ مہر نے اپنے تڑپتے دل کو سمجھاتے ہوئے کہا، وہ مصروف ہوگا، میرے میسج دیکھے گا تو مجھے کال کر لے گا۔ ہاں، میسج کر دیتی ہوں۔ مہر اپنی بات کو دہراتے ہوئے بولی اور جلدی سے میسج میں لکھا کہ مجھے کال کرو، میں انتظار کر رہی ہوں۔ تقریباً 5 منٹ سولی پر انتظار کرنے کے بعد مہر کے موبائل پر نیچل کی کال آنے لگی۔ مہر نے مسکراتے ہوئے کال اٹھائی اور ایک ہی سانس میں بولی، کتنی دیر سے میں تمہیں کال کر رہی ہوں لیکن تم نے کال نہیں اٹھائی۔ کسی بھی مشکل وقت میں تم فوراً کال نہیں اٹھاتے۔ میں کچھ کہوں گی تو تم نے کہنا ہے میں مصروف ہوتا ہوں، تمہاری طرح فری نہیں ہوتا۔ جبکہ دوسری طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ یکدم مہر خاموش ہوئی تو ایک روح کو سکون دینے والی آواز اس کی کانوں سے ٹکرائی تھی۔ مہر نے اپنی پوری آنکھیں موندی اور بیڈ پر لیٹتے ہوئے وہ بات سنی تھی، تمہیں میں نے کہا ہے کہ کم بولا کرو، لیکن اس میں تمہارا بھی قصور نہیں، تم جیسے مینٹل لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جبکہ خود کو پاگل کہنے پر مہر نے غصے سے فون کو دیکھا اور بولی، اب زیادہ فری مت ہو، میری بات تو سن لو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ بابا میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ مہر کی بات سن کر دوسری طرف موت کا سناٹا چھا گیا۔ مہر، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم انہیں منع کر دو، تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جبکہ اتنے مشکل وقت میں بھی اظہار محبت سن کر مہر کے لب مسکرائے تھے اور اس نے اپنے بالوں کو مغرور انداز میں پیچھے کرتے کہا، تم محبت کرتے ہو تو میں کیا کروں؟ اپنے بابا کے خلاف تو نہیں جا سکتی نا؟ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ بابا کے خلاف نہیں جا سکتی؟ ارے اینجل یار، میری بات سنو، میں یہ کہہ رہی ہوں تم اپنے پیرنٹس کو بھیج دو، ابھی رشتہ پکا نہیں ہوا، بس بابا دیکھ رہے ہیں، اور جتنا میں جانتی ہوں میرے بابا تمہیں ایک ہی نظر میں پسند کر لیں گے، آخرکار تم ہو ہی اتنے اچھے۔ جبکہ مہر کی یہ بات سن کر دوسری طرف پھر سے خاموشی چھا گئی۔ یہ تم بات بات پر پھر خاموش کیوں ہو جاتے ہو؟ جواب دو، میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا مسئلہ تم سے ڈسکس کر رہی ہوں اور تم ہو کہ سائلنٹ بیٹھے ہو۔ تبھی مقابل نے کہا، میں سائلنٹ اس لیے ہوں کیونکہ تم نے مجھے اتنی بری خبر سنائی ہے۔ میرے والد اور والدہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں اور وہ تقریباً 1-2 مہینے تک یہاں آنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے۔ کسی ضروری کام کی وجہ سے وہ آؤٹ آف اسٹیشن گئے ہوئے ہیں۔ مہر، اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ یہ خاموش ہونے والی بات ہے یا نہیں؟ تبھی مہر نے پریشانی سے اپنے ہاتھ کے ناخن چباتے ہوئے کہا، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، لیکن اب میں کیا کروں؟ بابا کو کیا جواز پیش کروں؟ تبھی مقابل نے کہا، تم کوئی جواز پیش مت کرو، بس انہیں یہ کہہ دو کہ تم اپنی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادی کرنا چاہتی ہو، تب تک حالات بہتر ہو جائیں گے، میں اپنے پیرنٹس کو تمہارے گھر بھیج دوں گا اور پھر ہم اپنے خوابوں کی زندگی جئیں گے۔ تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔
मेरे लिए तो ये तस्वुर ही जान का अजाब बना हुआ है कि तुम्हें कोई और लोग देखने भी आएंगे। शादी का तो मैं सोच भी नहीं सकता। महर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें सोचना चाहिए ना। अगर मेरी शादी किसी और से हो गई तो। तभी एंजल ने गुस्से से फोन बंद कर दिया और वो कहकहा लगाकर हंसते बोली, मैं कितनी खुशकिस्मत हूं जो मुझे इतना मोहब्बत करने वाला इंसान मिला है। अगर वो रॉन्ग कॉल ना आती तो आज मेरी जिंदगी में एंजल भी ना होता। महर को एकदम से पुरानी वो बात याद आई थी जिसकी वजह से आज एंजल और वो अपनी मोहब्बत की दुनिया में बहुत खुश थे, जबकि महर इस बात से अनजान थी कि आने वाला वक्त उसकी छोटी छोटी खुशियों को बुरी तरह रोंद डालेगा, कि उसे मोहब्बत और हमदर्दी के नाम से भी नफरत हो जाएगी। इस वक्त वो अपनी ख्वाबों की दुनिया में मगन बस एंजल और अपनी मोहब्बत के बारे में सोच रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जो सोचते हैं वो पूरा नहीं होता। उसकी जिंदा मिसाल महर थी। महर ने अपने आप को, अपने ख्वाबों को अपने गिर्द ऐसे बांध दिया था कि वो ये बात और ये हकीकत समझ ही नहीं पाई कि जिंदगी में सब कुछ आसानी से नहीं मिलता, और जो बहुत मुश्किल के बाद मिलता है वही इंसान के लिए बेहतरीन होता है। आने वाला वक्त महर को बहुत गहरे जख्म देने वाला था। अगर अब तुम्हारी कॉल आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें शर्म नहीं आती कॉल कर कर के मुझे परेशान किया हुआ है? और ये भी आदाब के खिलाफ है किसी इंसान को परेशान करना, गुनाह भी है। जबकि दूसरी तरफ खामोशी पाकर महर को झुंझलाहट हो गई। उसने एक मर्तबा फिर नंबर ब्लॉक कर दिया था। 2 घंटे सुकून के गुजरने के बाद उसके मोबाइल पर एक रॉन्ग कॉल आनी शुरू हो चुकी थी। महर ने झुंझलाते हुए फिर से कॉल उठाई और वही तकरीर की। वो थक चुकी थी। 2 दिन उसने अपना फोन बंद रखा था। सिम कार्ड वो बदल नहीं सकती थी क्योंकि सिम कार्ड लेने के लिए उसे शहर जाना पड़ता, और गांव से शहर जाना बड़े तरद्दुद का काम था। महर अपने मोबाइल से बिल्कुल बेखबर हो चुकी थी। तभी अचानक लैंडलाइन पर कॉल आई। महर बावर्ची खाने में थी तो उसने आगे बढ़कर फोन उठा लिया, लेकिन जो बात उसके कानों से टकराई वो सुनकर महर अंधाधुंध ऊपर अपने कमरे की जानिब गई। वहां जाकर उसने अपना नंबर ऑन किया, तभी मुसलसल कॉल आने लगी। महर ने कॉल उठाई और फोन कान से लगा लिया। तुमने 2-3 नंबर बंद रखा, मैं मुसलसल तुम्हें कॉल्स करता रहा। अब ये बदतमीजी के जिम्रे में नहीं आता कि कोई इंसान परेशान है और आप बेफिक्री से फोन बंद करके बैठे हैं। महर को तब चढ़ गई। उसने कहा, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? मेरी जिंदगी अजाब करके रख दी। मेरा फोन मेरी मर्जी, जब दिल चाहे ऑन करूंगी, जब दिल चाहे ऑफ करूंगी। जबकि दूसरी तरफ जोरदार कहकहा गूंजा और महर ने मोबाइल को देखा। उसे बहुत हैरत हुई थी कि किस तरह का इंसान था जो अपनी बात कहकर खुद ही हंस रहा था। तभी महर ने कहा, तुम हो कौन और मुझे कॉल्स क्यों कर रहे हो? मुकाबिल ने कहा, मैं एंजल हूं और मुझे तुम्हारा नंबर पता नहीं कहां से मिला था। अब मेरा दिल कर रहा है तुमसे दोस्ती करूं और तुम हो कि नखरे दिखा रही हो। तभी महर ने हैरत से कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? 1 हफ्ते से तुमने मुझे परेशान करके रखा है, अब अचानक दोस्ती की डिमांड कर रहे हो? और मैं किसी लड़के से दोस्ती नहीं करती। मुकाबिल ने कहा, तुम किसी लड़की से भी दोस्ती कर नहीं सकती, तुम सिर्फ मुझसे दोस्ती करोगी, है ना महर? अपना नाम किसी अनजान शख्स के मुंह से सुनकर महर को हैरत का झटका लगा था। उसने कहा, तुम हो कौन? मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हो? क्या मेरा नाम भी जानते हो? तभी मुकाबिल ने कहा, मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं दोस्ती कर लो। रफ्ता रफ्ता तुम्हारी जात को मैं तुम पर इस तरह उजागर करूंगा कि तुम्हें हैरत होगी कि कोई तुम्हें तुमसे बेहतर भी जान सकता है। महर ने हैरत से उसकी बात सुनी और कहा, तुम इतनी मुश्किल बातें क्यों कर रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या कहा और क्या नहीं। तभी अचानक फोन बंद हो गया। उसके बाद तो जाने अनजाने में महर को भी उसकी कॉल का इंतजार रहता था। 1 साल के बाद ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। एंजल महर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। इस बात का इजहार उसने खुद किया था, जबकि महर ने पहली मर्तबा किसी शख्स के मुंह से
अपने लिए तारीफ और इजहार मोहब्बत सुना तो अपने आप को उस मोहब्बत के दलदल में धंसने से नहीं रोक सकी और किसी नामहरम की मोहब्बत में मुब्तला हो गई। दिन रात बातें होने लगी, एक दूसरे के जज्बात से बाखबर हो गए। एक दिन अचानक महर ने एंजल से कहा कि वो अपने वालिदैन को भेजे ताकि उनकी मोहब्बत को एक मंजिल मिल सके, लेकिन एंजल के जवाब पर वो खामोश हो गई। उसे भी कोई जल्दी नहीं थी शादी की, वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती थी, लेकिन वक्त को कुछ और मंजूर था। सुबह जब महर उठी तो उसके वालिद ने महर को अपने कमरे में बुलाया। महर अपने बाप के पास जाकर लाड से उनके सीने पर सर रखकर बैठ गई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने जीने की वजह अपनी बेटी को देखा और बोले, क्या बात है, आज तो सुबह सुबह हम पर बहुत प्यार आ रहा है। तभी महर ने सर उठाकर अपने बाबा की जानिब देखा और बोली, बाबा जान, आप हमें तंग करेंगे, हम तो आपसे इतना प्यार करते हैं। आपकी ज़ौजा मोहतरमा ही हमारी मोहब्बत के खिलाफ है। जबकि अपनी बेटी की बात सुनकर वो पुरजोश हंसे थे, तभी उनकी अहलिया कमरे में दाखिल हुई और अपनी बेटी की बात सुनकर बोली, तुम्हारी ज़बान बहुत ज़्यादा चलती है और बोलती भी फजूल ही हो। दोनों माँ बेटी को बहस से रोकने के लिए महर के वालिद ने कहा, महर बेटा एक काम करो, तुम्हें शमरोज़ लाला लेने के लिए आ रहे हैं, तैयार हो जाओ, उनके साथ चली जाना, तुमने शॉपिंग करनी थी ना। जबकि अपने वालिद की यह बात सुनकर महर उछलते हुए बोली, बाबा जान, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। मैं भी सोच ही रही थी और आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। ये बात कहकर महर भाग गई थी, जबकि दोनों मियाँ बीवी ने मुस्कुराते हुए अपनी चहीती बेटी को देखा था। महर के वालिद ने अपनी बीवी को देखा और बोले, इसको हंसने मुस्कुराने से ना रोका करो, इसी की वजह से तो इतनी बड़ी हवेली में रौनक है, वरना अम्मा अब्बा के जाने के बाद ये हवेली मुझे खाने को दौड़ती थी। उनकी अहलिया ने भी उनके शाने पर हाथ रखा और बोली, आप सही कहते हैं, मैं तो बस इसलिए टोकती हूं ताकि हमारी इस खुशी को किसी की नजर ना लग जाए। महर तो जल्दी से तैयार होकर ड्राइवर के साथ सवार हो चुकी थी। एंजल को उसने मैसेज करना शुरू ही किया था, तभी अचानक गाड़ी को ब्रेक लगी। महर इस अचानक उफ्ताद पर घबरा गई और उसका मोबाइल हाथ से छूटकर गाड़ी में ही कहीं गिर गया। महर ने अपने दुखते सर को मसलते ड्राइवर से कहा, लाला क्या हो गया, कैसे गाड़ी चला रहे हैं। तभी ड्राइवर ने कहा, बीबी हमारा गलती नहीं, सामने से शमरोज़ खान की गाड़ी ने ब्रेक लगाने पर मजबूर कर दिया, वरना कोई हादसा हो जाता। शमरोज़ लाला? महर ने शमरोज़ का नाम दोहराया और गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ी हो गई। तभी शमरोज़ खान अपनी भरपूर वजाहत के साथ गाड़ी से निकला और महर की जानिब कदम बढ़ाते बोला, करीम तुम घर वापस चले जाओ, महर को मैं शॉपिंग करवाने जा रहा हूं, तो खुद ही वापस छोड़ दूंगा। ये बात सुनते ही ड्राइवर ने गाड़ी पीछे की जानिब कर दी, जबकि महर की ज़बान को तो ब्रेक लग चुकी थी। शमरोज़ ने उसको काली चादर में देखा तो बोला, अब यहां खड़े खड़े ही शॉपिंग करनी है। महर जल्दी से आगे की जानिब चल दी। कोई बईद नहीं था कि शमरोज़ उसे खड़े खड़े 2-4 बातें सुना देता। फ्रंट सीट पर बैठने के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई थी। महर ने अपने खाली हाथ देखे तो उसे याद आया कि उसका मोबाइल तो गाड़ी में ही रह चुका है। अब सारा रास्ता वो बोर हो गई। तभी न जाने किस एहसास के तहत महर ने शमरोज़ से कहा, लाला हम अकेले बैठे बोर हो रहा है, अगर आपको बुरा न लगे तो आपके मोबाइल को इस्तेमाल कर लें। शमरोज़ ने महर की जानिब देखा और अपने मोबाइल जेब से निकालकर उसको दे दिया। महर की तो दिल की कली खिल गई थी। उसने मुस्कुराते हुए शमरोज़ से मोबाइल लिया, लेकिन मोबाइल पर लॉक लगा था। फिर मदद तलब नज़रों से शमरोज़ की जानिब देखा तो उसने महर के हाथ से अपना फ़ोन ले लिया। तभी शमरोज़ और महर की हाथ की उंगलियां आपस में टकराईं। मोबाइल अनलॉक करने के बाद उसने दोबारा महर के हाथ में थमा दिया। शमरोज़ के मोबाइल में एक भी गाना नहीं था और ना ही कोई गेम थी, बस कारोबारी बातें और कुछ ज़रूरियात की चीज़ें। जबकि महर ने 10 मिनट में मोबाइल के साथ अपना दिमाग चलाया और फिर शमरोज़ की जानिब बढ़ाते बोली, लाला इससे तो अच्छा है हम इस सड़क को ही देख लें, जिसमें न जाने अजीब अजीब चीज़ें तो हैं, और आपका फ़ोन तो कारून के ख़जाने से भी ज़्यादा गहराइयों में छुपा है।
शुक्रिया। शमरोज ने खामोशी से महर की बात सुनी और मोबाइल वापस उसके हाथ से ले लिया। महर भी खामोशी से गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगी थी। शहर की जानिब जाती हुई सड़कें उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये एकदम शमरोज के मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। शमरोज ने एक नज़र फ़ोन देखकर कान से लगा लिया और हाँ हूँ करके कॉल बंद कर दी। तभी महर की ज़बान में खुजली हुई और उसने कहा, लाला, अगर आपको प्राइवेट बात करना है तो आप कर सकते हैं, हम गाड़ी से उतर जाता है। महर की अजीब सी बात को सुनकर शमरोज ने उसकी जानिब देखा और बोला, क्या मतलब है इस बात से? तभी महर ने कहा, हमारा मतलब है अगर आप हमारा भाभी से बात कर रहा है तो हम। शट अप महर, बहुत फालतू बोलती हो। अगर गाड़ी में तुम्हारी जरा सी भी अब आवाज़ निकली तो यहीं पहाड़ से नीचे फेंक दूंगा। महर, जो कि शमरोज से मजाक करके दरमियान की संजीदगी को कम करने की कोशिश कर रही थी, अचानक से उसके बदलते रवैये को देखकर खौफ से सहम गई। महर शमरोज को अच्छी तरह जानती थी कि शमरोज खान को इस तरह का मजाक पसंद नहीं। पता नहीं क्यों महर ने उस तरह का मजाक किया, इसीलिए वो खामोशी से सफ़र गुजारने लगी। लेकिन उसे ज़्यादा शदीद दुख था कि अपना मोबाइल उसने गाड़ी में ही छोड़ दिया। फिर जब शमरोज खान ने उसकी खामोशी महसूस की तो अपने रवैये पर पशीमान हुआ। लेकिन वो क्या करे, ये लड़की अजीब तरह की बातें करती है। 8 साल छोटी है लेकिन उसकी ज़बान 8 गज़ लंबी है। शमरोज को इतना ज़्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं। अगर उसके बाबा जान अम्मा ना कहते तो वो कभी भी महक को शॉपिंग करवाने खुद नहीं ले जाता। उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। चचा जान को भी इनकार नहीं कर सकता था और बाबा जान भी उससे 100 सवाल करते। किसी नौकर पर एतमाद नहीं था कि महर को उसके साथ शहर भेज दिया जाए। बिलाखिर ये जहर का घोंट पीना ही पड़ा। शहर पहुंचने के बाद यकदम शमरोज ने महर की जानिब देखा तो उसे सोता हुआ देखकर शमरोज खान ने एक सर्द सांस हवा के सुपुर्द की थी। ये लड़की किसी भी हाल में उसे सुकून लेने नहीं दे सकती थी। सारे रास्ते पटर पटर करके बोलती आई और अब सो रही थी। शमरोज ने महर को आवाज़ दी लेकिन वो नहीं उठी। तभी शमरोज ने गाड़ी का हॉर्न जोर से बजाया। महर अचानक हड़बड़ा कर उठी और गायब दिमागी से यहाँ वहाँ देखने लगी। शमरोज ने उसको हैरानी में मुब्तला देखा तो बोला, अगर तुम्हारी याददाश्त नहीं गई तो तुम्हें याद होगा हम यहाँ शॉपिंग करने आए हैं। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, जल्द अज जल्द अपना सामान लो और हमें वापस रात होने से पहले पहुंचना है। ये बात कहकर शमरोज ने गाड़ी से निकल गया, जबकि महर उसके पीछे निकली थी। शॉपिंग करने के बाद तो वो बहुत खुश थी, मगर जैसे ही घर में दाखिल हुए वहां का मंजर देखकर महर को झटका लगा था। सामने ही टेबल पर उसका मोबाइल रखा था और उसके बाबा बहुत इज़्तिराबी कैफियत में बैठे थे। महर अपनी ही धुन में उनकी जानिब बढ़ी, लेकिन उन्होंने करख्त आवाज़ में उसे वहीं रोकते हुए कहा, खबरदार, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया। हमने तुमसे इतनी मोहब्बत की, बेटों से बढ़कर तुम्हें इज्जत दी, पूरे खानदान ने तुम पर एतबार किया, तुमने गैर महरम से दिल लगी की और उसके साथ गैर मौज़िबाना ताल्लुकात रखे। ऐसी तो नहीं की थी तुम्हारी तरबियत। महर अपने बाबा के मुंह से सारी बातें सुनकर सख्ते में आ चुकी थी और आसमान सर पर गिरता हुआ महसूस हुआ था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एंजल और उसके रिश्ते के बारे में घर पर इस तरह पता चलेगा। महर ने अपने हवास बाख्ता करते हुए कहा, माँ बाबा जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। दरअसल उसके बाबा ने कहा, खबरदार, अगर मुंह से एक भी बात निकाली तो शायद हमारी तरबियत में ही कोई कमी रह गई होगी। महर ने शॉपिंग बैग्स वहीं फेंके और आगे बढ़कर अपने बाबा के पांव से लिपटते हुए बोली, बाबा आप गलत समझ रहे हैं, एक मर्तबा मेरी बात सुन लें, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बदगुमान ना होएं, मैं मर जाऊंगी। आपकी बदगुमानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाबा ने महर को खुद से दूर झटकते कहा, खबरदार, अगर आइंदा मेरी नज़रों के सामने आई अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये बात कहकर वो अपने कमरे में बंद हो गए।
जबकि महर ने अपनी माँ को देखा जो कि जख्मी नजरों से अपनी बेटी को देख रही थी। महर अंधाधुंध अपने कमरे की जानिब भाग गई और बेड पर लेटकर रोने लगी थी। महर को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस तरह इन हालात का मुकाबला करे। सारी गलती उस वक्त शमरोज की थी। ना उसकी गाड़ी सामने से आती और ना ही महर का मोबाइल हाथ से छूटकर गाड़ी में गिरता। ड्राइवर ने तो मोबाइल देने आया था। एंजल की कॉल आना एक नॉर्मल सी बात है। उसके घर वाले बिल्कुल अपनी जगह ठीक हैं। महर से गलती हुई थी। महर अपनी गलती पर बहुत ज्यादा पशेमान थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। महर ने दरवाजा खोला तो उसकी माँ ने आकर कहा, तुम्हारे बाबा तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। महर, तुमने हमें बहुत मायूस किया है। अपने बाबा की बात तहम्मुल से सुनना। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? ये बात कहकर वो चली गई। महर अपने आंसू साफ करके अपने बाबा के कमरे में दाखिल हुई, मगर वहां शमरोज को बैठा देखकर उसे नए सिरे से अपने जख्म ताज़ा होते महसूस हो रहे थे। महर नजरें झुकाए खड़ी थी। तभी उसके बाबा ने शमरोज से कहा, शमरोज, हमने तुम्हें हमेशा से अपने बेटे की तरह चाहा है। अगर हम तुमसे कुछ मांगे तो तुम हमें इनकार तो नहीं करोगे ना? शमरोज ने अपने चचा से कहा, नहीं चचा जान, आप हुक्म करें, आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। तभी महर के बाबा ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम अभी और इसी वक्त महर से निकाह कर लो। महर ने यकदम अपने बाबा की जानिब देखा था जो कि शमरोज को सवालिया नजरों से देख रहे थे। शमरोज ने एक नज़र चचा जान के चेहरे की जानिब देखा और कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे यह निकाह कबूल है। लेकिन महर तभी बोली, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? मैं शमरोज लाला के साथ कैसे निकाह कर सकती हूँ? तब उसके बाबा ने अपनी बेटी को देखा और बोले, ठीक है, तुम निकाह नहीं कर सकती तो मेरी मैयत पर बैठकर रोना। और नेकबख्त, खबरदार, अगर मेरे मरने के बाद तुमने मेरा चेहरा भी इसको दिखाया तो मैं तुम्हें रोज़े क़यामत नहीं माफ़ करूँगा। महर अपने बाबा की बात सुनकर तड़प गई थी। उसने आगे बढ़कर कहा, बाबा आप ऐसी बातें ना करें, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी। बस मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। महर के बाप ने अपनी बेटी को देखा और उससे रुख मोड़ लिया। थोड़ी ही देर बाद 4 गवाहों की मौजूदगी में महर का निकाह शमरोज लाला के साथ कर दिया गया। यह ख्याल ही महर की रूह को झंझोड़ गया था कि उसके वालिद उससे इतना नाराज़ हैं कि मरने की बातें कर रहे हैं, जबकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि महर उनके बगैर मर जाएगी। महर ने निकाह के बाद किसी से बात नहीं की थी और अपने कमरे में बंद हो गई थी। तभी घर में एक कोहराम मच चुका था। महर ने जब हॉल में झांका तो अपने बाप को ज़मीन पर गिरा देखा। नफसा नफसी में पता ही ना चला और कब उसके सर पर से बाप का साया उठ गया था। उस वक्त वो अपने बाप की मैयत पर बैठी थी। पता ही नहीं था जिंदगी ने कैसा पलटा खाया था। उसकी माँ भी अपने ही गम से 2-4 थी। महर खाली नजरों से अपने बाप के मुर्दा वजूद को देख रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे अभी उसके बाबा उठेंगे और मुस्कुराते हुए महर को अपने सीने का हिस्सा बना लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुप्पो दूसरे शहर गई हुई थी। उन्हीं के इंतजार में जनाजा रखा था। थोड़ी देर बाद जनाजा उठ गया और घर में एक मौत का सन्नाटा छा गया। महर को बहुत मुश्किल से मुलाजमों ने रोका था। काफ़ी देर बाद जब वो वहाँ बैठी सिसक रही थी तो महर को एक मुलाजमा उसके कमरे में छोड़ आई। अभी महर अपना लिबास तब्दील करने के बारे में सोच ही रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। महर ने दरवाज़ा खोला तो शमरोज को खड़ा देखकर हैरत में मुब्तला थी। शमरोज उसे अंदर की जानिब धकेलता खुद कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर लिया। महर ने बहुत ही ज़्यादा परेशानी से उसकी जानिब देखा, जो कि अजीब से तासुरात लेकर महर की जानिब कदम बढ़ा रहा था। महर नजरें झुकाते हुए बोली, शमरोज ला। अभी बस उसे आगे कहती तभी शमरोज ने आगे बढ़कर उसके होठों पर हाथ रख दिया। क्या हो गया? अभी अभी तो हमारा निकाह हुआ था, तुम अभी से निकाह मनसूख कर रही हो? महर को बहुत ही अजीब लगा था उसका इस तरह छूना। महर ने फासला बनाया था। शमरोज ने आगे बढ़कर उसकी कमर में हाथ डाला और उसे खुद से करीब करते बोला, क्या हुआ? इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो, जैसे मैं कोई अछूत हूं? महर ने उसके सीने पर हाथ रखा और नजरें झुकाकर बोली, नहीं बस अभी ये सब बहुत जल्दी हो गया।
مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ سوچا تو میں نے بھی کچھ نہیں تھا، خیر ہو گیا۔ اب تم تو ایک کام کرو مہر، جا کر کپڑے تبدیل کرو۔ آج میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یکدم مہر نے شمروز کی جانب دیکھا جو کہ اپنی آنکھوں میں گرم احساس لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہر اس سے دور ہوئی اور بولی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی تو بابا اپنے سفر پر روانہ ہوئے ہیں، تمہیں ان کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو میں نے کہا اس پر عمل کرو، جا کر یہ لباس تبدیل کرو۔ یہ بات کہہ کر شمروز نے مہر کو واش روم کے اندر جانب دھکیل دیا اور خود باہر انتظار کرنے لگا۔ مہر نے تو ہمیشہ سے شمروز کو اپنا بھائی مانا تھا، آج وقت نے اسے کس دوراہے پر کھڑا کر دیا تھا۔ لیکن یکدم اس کی نظر شمروز کے دیے ہوئے لباس پر پڑی تو مہر کو اپنے وجود سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اس نے آج تک اس طرح کا لباس نہیں پہنا تھا اور شمروز کے سامنے ایسا لباس پہن کر جانے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تقریباً 10 منٹ تک مہر وہیں اس طرابی کیفیت میں کھڑی رہی۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا اور شمروز اندر داخل ہوا۔ مہر ایک دم اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ شمروز نے اس کے دونوں بازو جکڑے اور بولا، مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ تم پیار سے میری بات کبھی نہیں مانو گی۔ اس سے پہلے کہ مہر کوئی جواب دیتی، شمروز نے آگے بڑھ کر اس کی قمیض درمیان میں سے چاک کر دی تھی۔ مہر کے لیے تو نظریں اٹھانا دو بھر ہو گیا۔ اس نے ہاتھوں سے اپنا آپ ڈھانپنا چاہا، مگر شمروز نے باقی کپڑے بھی اس سے الگ کیے اور اس کو اپنے قریب کرتے بولا، چھوٹی ہو مگر اتنی بھی نہیں کہ اس رشتے کے تقاضوں کو نہ سمجھ سکو۔ خوشی سے اس رشتے کو اپناؤ اور مکمل کرو۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ مہر بس اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ ساری رات مہر کی انگاروں پر کٹی تھی۔ اس آگ جیسی قربت نے مہر کے وجود پر ہی نہیں، روح پر بھی بہت گہرے زخم دیے تھے۔ اس میں تو اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ شمروز کو روک سکتی۔ اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر ہی اتارتے اس وقت مہر سسک رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر شمروز پر پڑی جو کہ ڈریسنگ روم سے کپڑے بدل کر نکلا تھا۔ اس وقت وہ بہت فریش دکھائی دے رہا تھا۔ مہر نے اسے دیکھ کر خاموشی سے آنکھیں موند لیں۔ تبھی اپنے قریب دوبارہ سے اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مہر نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو شمروز نرم مسکراہٹ لیے اس کی جانب جھکا ہوا تھا۔ مہر نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا مگر اس نے واپس اسے لٹاتے کہا، نیچے سب انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ۔ مہر کو خاموش دیکھ کر شمروز نے بہت نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور بولا، میں جانتا ہوں یہ سب کچھ بہت جلدی ہو گیا، لیکن اتنا جلدی بھی نہیں کہ تم اپنے حواس میں نہ رہو، اور میں شروع سے حلال کھانے کا عادی ہوں، حرام کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتا، تو کوشش کرنا کہ جو کچھ ہو ہمارے درمیان ہو۔ مجھے شراکت داری بہت بری لگتی ہے مہر، تمہاری یہ غلطی میں کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ یکدم مہر نے نظریں اٹھا کر اس پرکشش چہرے والے اپنے شوہر کو دیکھا تھا جو کہ ایک کے بعد ایک ستم ڈھا رہا تھا۔ اس پر مہر نے ایک ہچکی لی تھی۔ شمروز نے اس کے نرم و ملائم گال کو دیکھا اور بولا، سختی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، آئندہ کوشش کروں گا تمہیں میرے نزدیک آتے کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، بدلے میں تم بھی میرے سکون کا احساس کرنا۔ چلو اٹھو۔ مہر اس کے سہارے اٹھ کر بیٹھی مگر ایک احساس کے تحت سرخ گلاب ہوئی تھی۔ شمروز نے گہری نظر اس پر ڈالی، مہر کی حالت سمجھتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ مہر واش روم میں نہ جانے کتنی دیر چیخیں مار مار کر روتی رہی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شمروز اور اس کے درمیان اتنا سب کچھ، یہ تو اس نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ اینجل، ایک درد سا اس کے دل میں اٹھا تھا، نہ جانے اب دوبارہ حالات بہتر ہوں گے یا نہیں۔ اپنی ماں کا خیالات آتے ہی اپنے زخموں پر خود ہی مرہم رکھتی مہر نیچے کی جانب چلی گئی۔ مہر کی ماں نے اپنی گلاب جیسی بچی کی رنگت میں زردی دیکھی تو آگے بڑھ کر اس سے ملی۔ مہر کی اکلوتی ہمدرد اس کی ماں تھی، وہ بھی اپنی ماں سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ تائی جان نے دونوں ماں بیٹی کو رونے دیا تھا، ان کے دل پر بہت بوجھ تھا۔
वो चाहती थी कि अच्छी तरह रो लें। काफी देर तक जब वो लोग चुप ना हुई तो ताई जान ने आगे बढ़कर उन्हें चुप करवाया और बोली, बेटा हौसला रखो, ये हालात तो हर एक इंसान के साथ हैं। ताई जान की इतनी शफकत और मोहब्बत पर महर खामोश हो गई थी। अपनी माँ को खाना खिलाने के बाद वो उन्हीं की गोद में सर रख कर लेट गई। जब शमरोज कमरे में दाखिल हुआ, महर ने उठकर बैठना चाहा, लेकिन उसकी माँ ने उसे अपने पास ही लेटे रहने दिया। शमरोज ने एक नज़र महर को देखा और आगे झुककर अपनी वालदा के पास जाकर बैठ गया। ताई जान ने अपने शहजादे बेटे को देखा और बोली, भाभी, मुझे तो महर हमेशा से ही अपनी बहू के रूप में चाहिए थी, लेकिन ये तो वक्त ने हम पर करम किया कि वो खुद ही हमारी झोली में आ गई। अब हम अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहते हैं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। यकदम इस बात पर महर ने शमरोज की जानिब देखा, जो कि महर को ही देख रहा था। महर की मां ने कहा, भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर मैं अपनी इद्दत मुकम्मल होने के बाद इस रुखसती का इरादा रखती हूं। अगर आपको एतराज ना हो तो। ताई जान उससे पहले कुछ कहती जब शमरोज ने कहा, नहीं चच्ची जान, हमें कोई एतराज नहीं। महर ने सुक्का सांस लिया था, क्योंकि कल रात की कुर्बत की तकलीफ महर को अभी तक अपने वजूद में महसूस हो रही थी। उसे सिर्फ ज़हनी सुकून की ज़रूरत थी। वो अच्छी तरह जानती थी अगर वो ताई जान के घर चली गई तो किसी भी तरह इस रिश्ते के तकाजे से मुंह नहीं मोड़ सकेगी। फिलहाल उसके लिए ये वक्त बहुत था। रात के वक्त महर जब सो रही थी तो अचानक उसको अपनी कमर पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। यकदम महर के मुंह से निकला, शमरोज। तभी मुकाबिल ने एक झटके से उसका रुख अपनी जानिब किया तो महर ने आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा। जी शमरोज की जान, मेरे अलावा कोई तुम्हारे नज़दीक अभी नहीं आ सकता। ये बात कहकर वो महर की जानिब झुकने लगा। जब भी महर ने उसके मुंह पर हाथ रखा और बोली, मैं बहुत थकी हुई हूं। न जाने उसकी आवाज़ में ऐसा क्या था। शमरोज ने झुककर उसकी पेशानी चूमी, महर को अपने सीने पर लेटाया और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। महर भी खामोशी से आंखें मूंदे बैठी रही। थोड़ी देर बाद शमरोज को महर की भारी सांसों से एहसास हुआ कि वो गहरी नींद में जा चुकी है। अगली सुबह जब महर उठी तो उसे अपने गिर्द सिर्फ शमरोज की खुशबू महसूस हुई थी। शमरोज जा चुका था। महर नीचे आई और अपनी मां के साथ बैठकर बातें करने लगी। इसी तरह जिंदगी के 2 महीने गुजर चुके थे। शमरोज पिछले 1 महीने से नहीं आया था। महर ने कोशिश भी नहीं की थी उसके बारे में जानने की। अक्सर वो आता भी तो सिर्फ उसकी मां के पास बैठकर ही चला जाता। महर से कोई बात नहीं करता था। आज भी अचानक ताई जान की तबीयत खराब हुई तो उसकी मां ने कहा कि वो जाकर उनका हाल पूछ लें। ताई जान ने महर को देखा तो बहुत खुश हुई और महर से कहने लगी, उनकी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। उन्होंने अपनी बहू को अपने घर में आता देख लिया है। महर भी मुस्कुरा कर रह गई। तभी मुलाजमा ने आकर कहा कि छोटे खान का ड्राइवर आया है और वो कह रहा है ऊपर उनकी अलमारी में एक फाइल मौजूद है, वो दे दे। ताई जान ने महर से कहा कि वो ऊपर जाकर शमरोज के कमरे से वो फाइल लाकर ड्राइवर को दे दे। महर खामोशी से उनके हुक्म की तायीद करते हुए शमरोज के कमरे में चली गई। महर ने दरवाज़ा खोलकर उस खूबसूरत कमरे को देखा जहां उसकी पूरी जिंदगी गुजरने वाली थी। अपने ख्यालों को छोड़कर महर ने अलमारी खोली और वहां से फाइल तलाश करने लगी। तभी कपड़ों के नीचे से एक चीज महर के पांव में आकर गिरी। महर ने फाइल उठा ली और फिर अलमारी का दरवाज़ा बंद किया और झुककर वो मोबाइल फ़ोन उठाया। मगर अचानक ही महर को अपने पांव के नीचे से ज़मीन निकलती महसूस हुई। उस मोबाइल फ़ोन पर बहुत से मैसेजेस और कॉल्स थीं और जिस कॉन्टैक्ट से वो मैसेज और कॉल्स किए गए थे वो नंबर देखकर महर को शदीद हैरत का झटका लगा था। उसे 1 मिनट में सारी कहानी समझ आ चुकी थी। मुलाजमा ने आकर महर को पुकारा तो महर होश की दुनिया में आई। उसे फाइल देकर अपनी हवेली की जानिब निकल पड़ी। सारे रास्ते महर यही सोचती आई थी कि वो किससे सवाल करे, अपने साथ किए गए इतने बड़े धोखे का, उस सितमगर से जिसने उसे सारी दुनिया के सामने
रुस्वा कर दिया, बाबा को बदगुमान कर दिया और फिर खुद ही अपने बाजू का सहारा देकर मौतबिर भी किया। लेकिन उसका जुर्म काबिले कबूल नहीं था। महर इस सवाल का जवाब लेना चाहती थी। बहुत जल्द दो तूफान आपस में टकराने वाले थे। जल्द ही बहुत सी बातों का खुलासा होने वाला था। जैसे ही महर घर में दाखिल हुई तो मुलाजमा ने बताया कि खान आपका इंतजार कर रहे हैं। महर को तो ये बात सुनकर आग लग चुकी थी। वो तेजी से अपने कमरे की जानिब गई। जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो सामने शमरोज को खड़ा देखकर महर को लगा कि जो सवाल वो करने आई है वो कर नहीं सकेगी। तभी शमरोज ने बात शुरू करते कहा, तुम छोटी सी थी, मैं तब से तुमसे मोहब्बत करता हूं। सोचा कि आकर खुद बताऊं, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हो पाती थी। फिर अचानक एक दिन ख्याल आया कि तुम्हें कॉल करके परेशान किया जाए। ये बस एक कॉल तो पता नहीं चला कब तुम मेरी तरफ मुतवज्जो होने लगी, मुझसे मोहब्बत करने लगी। वक्त गुजरता रहा, लेकिन जब चाचू ने शादी की बात की तो मैं सब कुछ भूल गया। मुझे होश नहीं रहा था कि क्या करूं। मोबाइल में अगर तुमसे बात करने के लिए इस्तेमाल किया करता था। अचानक वो सब हो गया और आपको शर्म नहीं आई मेरे जज्बात के साथ खेलते हुए? अगर मोहब्बत थी तो सामने से कहते। ये बैग स्टोर क्यों बनाई आपने? महर को शमरोज ने चीखते हुए देखा तो आगे बढ़कर बोला, तुम इतना मत चीखो, तुम्हें पता है ना कि। शमरोज ने मुस्कुराते हुए कहा, यानी कि आपको पता चल चुका है कि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं, तभी आप मेरे सामने सच्चाई ला रहे हैं, वरना आप ऐसा कभी ना करते। शमरोज ने खुद पर जब्त करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बताने वाला था। महर ने कहा, तो बताया क्यों नहीं? शमरोज ने कहा, मैं डरता था तुम्हें खोने से। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। महर उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोली, आप जैसा इंसान मोहब्बत के नाम से वाकिफ नहीं है। खबरदार अगर मेरे सामने आए, मुझे नहीं पता मैं क्या कर लूंगी। महर ने उसे कमरे से बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर लिया। शमरोज उसे आवाजें लगाता रहा, लेकिन महर ने दरवाजा नहीं खोला। वो तो अपने साथ उस बड़े धोखे पर ही सकते में थी, लेकिन उस पर यह खबर कि शमरोज के बच्चे की मां बनने वाली है जल्दी पर तेल का काम किया था। ये सोचकर महर को तकलीफ हो रही थी कि एंजल और शमरोज एक ही इंसान है। शमरोज सारा दिन और सारी रात यहां से वहां गाड़ी दौड़ाता रहा। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि महर उससे इतनी बदगुमान हो जाएगी। उस दिन भी चचा जान के कहने पर निकाह कर लिया था, लेकिन उसने कभी नहीं चाहा था कि महर किसी के भी सामने बेइज्जत हो। बाद में पता चला कि चचा जान को हार्ट अटैक आया था। जिगर तो पहले ही खराब हो चुका था। महर इसी बात को दिल से लगाकर बैठी रही। दूसरी तरफ महर को पता था कि उसके वालिद की मौत बीमारी की वजह से हुई है, ना कि महर की बदगुमानी की वजह से। लेकिन उस वक्त वो शदीद हैरत में थी कि कैसे शमरोज महर के जज्बात के साथ खेलता रहा। शमरोज को इतनी जल्दी माफ करने का इरादा नहीं रखती थी। तकरीबन 15 दिन तक महर से वो बात करने के लिए आता रहा। उसने बहुत मर्तबा महर से माफ़ी मांगी थी, लेकिन महर ने उसे माफ़ नहीं किया था, ना ही उसकी किसी बात का वो जवाब दे रही थी। इस सब के बारे में महर ने और ना ही शमरोज ने घर वालों को बताया था। शमरोज दुबई जाने के लिए घर से निकल रहा था तो उसकी वालदा ने कहा कि महर से मिलकर जाना। शमरोज खामोशी से निकल गया। तकरीबन 1 महीने तक वो दुबई में रहा। महर ने 1 महीना सुकून से काटा था, लेकिन आज अचानक शॉपिंग करने के लिए गई तो महर की तबीयत खराब हो गई। लोगों ने उसे करीब के अस्पताल में दाखिल करवा दिया। बीपी ज्यादा लो हो चुका था। डॉक्टर ने आराम करने का कहा था। तकरीबन पूरा दिन अस्पताल में गुजारने के बाद महर जैसे ही घर पहुंची तो अपने कमरे में कदम रखते ही जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। महर ने अपना वहम समझा और बोली, वो क्यों आएगा मुझसे मिलने? मैं पागल हूं जो उसकी निशानी को खुद में समेट कर बैठी हूं। उससे पहले कि महर कुछ मजीद कहती, जब भी उसे अपने पेट पर किसी के हाथों का लम्स महसूस हुआ।
महर की ज़बान को ब्रेक लगी और उसने मुड़कर देखा तो शमरोज़ खड़ा था। शमरोज़ ने आगे बढ़ते उसे मज़ीद खुद में समेटा और मोहब्बत भरे लहजे में बोला, कैसी हो? तुम सोच रही हो मुझे मोहब्बत नहीं है? अगर मुझे तुम्हारी फिक्र ना होती तो पागलों की तरह पाकिस्तान वापस नहीं आता। तुम तो हमारे बच्चे का ख्याल रखने से रही। महर ने रोते हुए कहा, ना आते पाकिस्तान, मैंने बुलाया है क्या? शमरोज़ ने कहा, ठीक है, लेकिन अब मेरी लाश वापस आएगी, क्योंकि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इस बात पर अचानक महर ने शमरोज़ की जानिब बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रखते बोला, आप जैसा संगदिल इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। चले जाएं यहां से, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं अपने बच्चे पर आपका साया नहीं पड़ने दूंगी। धोखेबाज इंसान, इतनी मोहब्बत की आपसे, आपके रंग में रंगने की पूरी कोशिश की, खुद को गुनहगार समझ रही थी। शमरोज़ ने महर के सामने हाथ जोड़े और बोला, ये गलती माफ कर दो। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम भूल ही जाओगी कि जिंदगी में कभी कोई गम भी था। हमारे बच्चे के लिए ही सही, लेकिन मुझे माफ कर दो। महर रोते हुए बोली, पहले वादा करें कि कभी मुझे दोबारा धोखा नहीं देंगे। तभी शमरोज़ ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरी 7 नस्लों की तौबा। अचानक महर का कहकहा घर में गूंजा था। एक मर्तबा फिर खुशियों ने महर के घर का रुख किया था। बेशक हालात बेहतर होने वाले थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।